First of all, see this photograph. Here the heading is given as fish farm engineering. But in this photograph, what the things they are mentioned, see here the nursery pond, the heading is given. These ponds are of small size one. So what means the nursery pond and what is the use of this nursery pond? Nursery pond is such a pond in which the fish seed, the spawns, they were what we are calling as reared up to the fry one. They were reared up to fry. So whatever the after fish egg fertilization after 72 hours, what the spawns they were developed. Now these spawns they were developed in these what we are calling as nursery ponds up to 15 days or maximum up to 1 month, or few batches of such the fertilized eggs or spawns they were introduced into these nursery ponds, and here the fishes they were reared up to the fry size. Now here again somewhat the larger ponds are there that we are calling as the rearing ponds one. These rearing ponds are the ponds where the fry they get developed up to the finger like structures. So I'm sorry, finger size structure. So they are developed up to finger like structures where these fry get developed up to finger structure one within 3 months. So rearing ponds are such the ponds in which the fish seeds or the fish fries they were reared up to the 3 months one, that we are calling as the rearing ponds. And here you see these are the number of the other ponds are there. The heading is given as the stocking pond. The size varies one, because the stocking pond it may be of zero point 0.4 hectare, or it may be of 0.2 hectare, or it may be of 1 hectare. Sometimes it may be more than 1 hectare one. So these are the ponds one where the fishes they were kept or they were reared throughout the year, or they were reared, cultured, developed up to marketable size one. So these are the what we are calling as the stocking ponds are there. So these three words it must be known to you, that nursery ponds means the small ponds where the fish spawns were reared up to 15 days to 1 month. Rearing ponds are the ponds where the fry they get reared up to the fingerling size, whereas the pond meaning the stocking pond, or generally when we use the word pond means the stocking pond where the fishes they were reared throughout the year one, or the fishes are grown up to marketable size one. So what the in the curriculum what the fish farm engineering is the topic for the BSc third year zoology subject students of semester 5th, and in that the subbits are topography, soil type, water supply, layout of fish farm. These are the subbits are there. Here in this slide it is mentioned that under the curriculum of Swami Ramananda Tirtha Marathwada University Nanded, for the BSc third year students, paper number 13 pisciculture is the optional subject one, and in that pisciculture subject which is of 2 credit or 45 period, the subject is there in which the unit first is or in the unit first what the first bit is there, it is the fish farm engineering, and the subbits are the topography, soil type, water supply and layout of the fish farm. So what is the connection of these four words, topography, soil type, water supply and layout of fish farm, with fish farm engineering, and what is the fish farm engineering we will discuss in the coming what we are calling as few minutes one. Before knowing to you all the fish farm engineering, you must know few words one. The paper what is there for your study is the pisciculture. So what means the pisciculture? The simple meaning of pisciculture is growing or rearing of fishes. Growing or rearing of the fishes, or in a scientific or culture and rearing of the fish is called as pisciculture.
or in another word we can say that breeding, rearing and transplantation of fish by artificial means is called as pisciculture. तो क्या होता है इस पिसिकल्चर में? जहाँ पे हम फिश को ग्रो करते हैं, फिश को कल्चर करते हैं, फिश को रियर करते हैं आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में. आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट मीन्स मैन मेड पॉन्ड्स हो या फिर मैन मेड रिजर्वायर्स हो या नेचुरल लेक्स हो. इन सारी प्लेसेस में हम आर्टिफिशियली वहाँ पे फिश सीड इंट्रोड्यूस करते हैं. उस फिश सीड को हम आर्टिफिशियल फूड देते हैं और उनकी ग्रोथ होने के बाद मार्केटेबल साइज़ में जब ये फ़िश ग्रो होते हैं तो उन फिशेस को हम सोल्ड करते हैं. तो ये सारी बातें जो है पिसिकल्चर के अंदर आती हैं. सिर्फ यहाँ तक ही पिसिकल्चर नहीं होता है, तो ये जो फिशेस होते हैं लार्ज साइज फिशेस जिसे हम ब्रूड फिशेस कहते हैं या फिर मैच्योर फिशेस कहते हैं, उनको सेलेक्ट करके उन फिशेस से हम एग्स और स्पर्म्स जो है उसको उनके बॉडी से निकालते हुए जिसे हम इंड्यूस ब्रीडिंग कहते हैं, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कहते हैं. आर्टिफिशियल ब्रीडिंग से हम उनके सीड प्रोड्यूस करते हैं और फिर उन सीड्स को हम नर्सरी पॉन्ड्स में फ्राई होने तक ग्रो करते हैं. फिर उन फ्राइज को हम रियरिंग पॉन्ड में फिंगरलिंग साइज होने तक 3 महीने तक ग्रो करते हैं और उसके बाद में हम उन फिंगरलिंग्स को स्टॉकिंग पॉन्ड में या फिर किसी लार्ज रिजर्वायर में या फिर लार्ज वाटर बॉडीज़ में हम रियर करते हैं. अगर नेचुरल फूड इन फिशेस को कम गिरता है, ऐसे कंडीशन में हम आर्टिफिशियल फूड भी इन फिशेस को देते हुए इन फिशेस को मार्केटेबल साइज तक ग्रो करते हैं. इसका अनदर मीनिंग ऐसा भी निकल सकता है कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ फिश, मतलब एक जगह पे एक फ़िश हमने प्रोड्यूस किया या फिर कोई डिज़ायरेबल एक फ़िश है, हमें वो फ़िश अपने रीजन में ग्रो करनी है, तो अपने रीजन में उस फिश को हम इंट्रोड्यूस करके कंट्रोल कंडीशन में उसको ग्रो करके उसको मल्टीप्लाई हम करते हैं. तो इन सारी चीज़ों को हम पिसिकल्चर कहते हैं. उसी के साथ में दूसरा एक वर्ड आपको मालूम होना चाहिए, फ़िश फार्मिंग. तो फ़िश फार्मिंग क्या है? फ़िश फार्मिंग एक एक्वाकल्चर का टाइप है. पिसिकल्चर ये सिर्फ कल्चर एंड रियरिंग ऑफ फिश को हम पिसिकल्चर कहते हैं, लेकिन एक्वाकल्चर एक ब्रॉड एस्पेक्ट है. तो एक्वाकल्चर का एक टाइप है फ़िश फार्मिंग, जिसके अंदर फिशेस जो है एक कंट्रोल्ड एनक्लोजर में इस फिश को रेज किया जाता है, ग्रो किया जाता है, डेवलप किया जाता है फॉर द पर्पस टू सोल्ड दैट पर्टिकुलर फिश एज अ फूड. आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो फिश फार्मिंग ये ग्लोबली सबसे फास्ट ग्रोइंग एरिया है एनिमल फूड प्रोडक्शन में. किसी दूसरे पर्टिकुलर एरिया के कंपैरिजन में फ़िश फार्मिंग में सबसे ज़्यादा एनिमल फूड प्रोड्यूस किया जाता है. और आज जितने भी फिशेस पूरे वर्ल्ड में कंज्यूम किए जाते हैं तो आधे से ज़्यादा फिशेस इसी तरह आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में राइज किए जाते हैं, रियर किए जाते हैं, कल्टीवेट किए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं. तो इसे हम फिश फार्मिंग कहते हैं. ऑन लार्ज स्केल द फिश प्रोडक्शन by artificial means in the controlled condition. So already we know the two things. One is the pisciculture, means simply culture and rearing of what we are calling as fishes, whereas I have already told you aquaculture it involves the culture and rearing of fish as well as the other aquatic organisms such as the prawns, oysters and the aquatic plants. एक्वाकल्चर में सिर्फ फिशेस के रिंग को भी एक्वाकल्चर में इन्वॉल्व किया जाता है, लेकिन फिशेस के अलावा प्रॉन्स रहो, फ्रॉग रहो, ऑयस्टर्स रहो, आर्थ्रोपोड्स रहो, क्रस्टेशियन फिशरी जिसे हम कहते हैं, इन सारे ऑर्गेनिजम्स को जहाँ पे कल्चर किया जाता है तो वो सारे जो है एक्वाकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं. ना सिर्फ ये आर्थ्रोपोड्स या फिर मोलुस्कन्स या प्रॉन्स, यही नहीं तो कुछ एक्वाटिक प्लांट्स का भी रियरिंग जो किया जाता है दैट इज इंक्लूडेड इनटू द एक्वाकल्चर. सो एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस दे आर कैरिड आउट इन मराइन एज वेल एज द फ्रेश वाटर, एंड बोथ दीज मराइन एंड फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस दे वेर नाउ increasing very rapid manner one. Then the next word is there engineering.
because our first bit is their fish farm engineering. So we have now got the idea about the fish farming. Means a practice in which fish were raised, grown, developed, cultured, reared, that we are calling as the fish farm or fish farming. And now what means the engineering? किसे हम इंजीनियरिंग कहते हैं? इंजीनियरिंग एक ऐसी साइंटिफिक फील्ड और एक जॉब होती है जिसके अंदर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस इंजीनियरिंग फील्ड रिलेटेड पर्सन को या प्रोफेशनल को, और वो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग जो है उस साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग का यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए, किसी भी चीज़ को बिल्ड करने के लिए, या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या इवन कुछ चीज़ें इन्वेंट करने के लिए, और उसका अल्टीमेट एम होता है टू अचीव द गोल। या इंजीनियरिंग को हम वेरी सिंपल शॉर्ट वर्ड में ऐसा भी कह सकते हैं कि टू प्लान एंड टू एग्जीक्यूट द प्लान टू अचीव द प्रैक्टिकल गोल। कोई एक प्लान तैयार करना और उस प्लान को एग्जीक्यूट करना और प्रैक्टिकल गोल अचीव करने के लिए उस प्लान को एग्जीक्यूट करना। जैसे यहाँ पे मैं एक सिंपल सी बात आपको इंजीनियरिंग की और सिंपल से समझने के लिए कहना चाहता हूँ कि अभी आपके सामने पिसीकल्चर ये वर्ड सुना कि फ़िश फार्मिंग, जहाँ पे लार्ज स्केल में फ़िशेस का रियरिंग किया जाता है। लेकिन लार्ज स्केल में फ़िशेस का रियरिंग किया जाता है ये समझने के लिए पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि फ़िशेस जो ग्रो करते हैं, जैसे मैंने पहली एस्पेक्ट में आपको कहा कि स्पॉन को जो है छोटे साइज़ के पॉन्ड में रियर करते हैं, उसे नर्सरी पॉन्ड कहते हैं, और 15 दिन तक ही उनको रियर किया जाता है। बाद में दूसरे बड़े साइज़ पॉन्ड में उनको रियर किया जाता है, क्योंकि अभी फ़िश की साइज़ थोड़ी सी ग्रो हुई है तो उनको मूवमेंट के लिए ज़्यादा जगह भी चाहिए, इसलिए उनको थोड़ा सा लार्ज साइज़ पॉन्ड में ऐड किया जाता है। और उसके बाद में और जब वो फिंगर लाइंग साइज़ बनते हैं तो उनके और उससे भी लार्ज साइज़ पॉन्ड में ऐड किया जाता है। तो ये सारी बातें कंट्रोल कंडीशन में कहाँ से आ गई? तो नेचुरल एनवायरनमेंट में जब फिशेस की पूरी बायोलॉजी को स्टडी किया गया, उनके लाइफ को पूरी स्टडी किया गया, तो ये समझ में आया कि पर्टिकुलरली अगर हम छोटा पॉन्ड बनाते हैं तो उसके अंदर काफ़ी हम स्मॉल फ्राई डेवलप कर सकते हैं, उससे थोड़े से बड़े पॉन्ड में हम फिंगरलिंग डेवलप कर सकते हैं। और हमें फ़िश मार्केटेबल साइज़ अगर बनानी है तो हमें थोड़ा सा काफ़ी बड़े साइज़ का पॉन्ड होना चाहिए जहाँ पे फ़िश जो है अच्छी तरह से ग्रो हो। तो ये सारी बातें कहाँ से आ गई? साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग से आ गई। और उस साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग में मतलब किसी भी नेचुरल वाटर बॉडी में, रिजर्वायर में फ़िश के ग्रोथ को, डेवलपमेंट को जब स्टडी किया गया इनिशियल फेज में, तो उसी टाइप का एनवायरनमेंट आर्टिफिशियल पैमाने पे बनाया गया। तो उसके लिए डिज़ाइन बनाए गए, तो कुछ चीज़ें वहाँ पे बिल्डअप की गई, कंस्ट्रक्ट की गई। तो एक टाइप का ये क्या हो गया? इन्वेंशन हो गया। और इस इन्वेंशन की वजह से आज हमें हर वक्त जब फ़िश चाहिए तो रिवर में जाके उसे फिशिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हम कंट्रोल कंडीशन में फ़िश ग्रो कर रहे हैं तो हमें डिज़ायर्ड फिश स्पीसीज़ एक कंट्रोल्ड पॉन्ड में हमें जब चाहिए तब अवेलेबल हो सकते हैं। एंड दिस गोल इज़ अचीव्ड। ये जो गोल अचीव किया गया किस बलबूते पे अचीव किया गया कि साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग जो है, इस साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग का यूज़ किया गया। और इस साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करते हुए जिन्होंने ये डिज़ाइन किया या फिर बिल्डअप चीज़ें की, इन्वेंट किया गया, तो ये एक साइंटिफिक फील्ड है। और इन सारी चीज़ों को हम किस वर्ड से कहलाते हैं? उसे हम कहते हैं इंजीनियरिंग। दैट वी आर कॉलिंग एज द इंजीनियरिंग। सो इट इज़ अ फिश फार्म इंजीनियरिंग। मतलब फ़िश फार्म बनाने के लिए किन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कौन से डिज़ाइंस हमें मालूम होने चाहिए, कौन सी चीज़ें वहाँ पे बिल्डअप करनी चाहिए, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, ताकि प्रैक्टिकल गोल जो है फ़िश फार्म बनाने का
वो अचीव किया जाए. So that all these things they are discussed in this fish farm engineering. I do hope you all of you got my point. So the fish farm engineering, the meaning of the fish farm engineering is, or what is the aim of this fish farm engineering? The cultivation of selected varieties of fishes in ponds. जो कुछ भी फिश स्पेसीज हमें ग्रो करनी है, चाहे टिलापिया ग्रो करना है, रोहू, कटला, मृगल को ग्रो करना है, या फिर कोई भी फिश स्पेसीज को हमें पॉन्ड्स में ग्रो करना जो होता है, उसे कल्टीवेट करना होता है, यही मेन एम होता है फिश फार्मिंग का. सो फिश फार्मिंग एम्स द कल्टीवेशन ऑफ सेलेक्टेड वैरायटीज ऑफ फिशेस इन पॉन्ड्स. सो फिश फार्मिंग इज़ यूजफुल इन प्रोवाइडिंग फिशेस फॉर ह्यूमन. फिश फार्मिंग के वजह से ह्यूमन को फिशेस कंजम्पशन के लिए अवेलेबल करके देना, एज वेल एज द रीस्टॉकिंग ऑफ नेचुरल एक्वेटिक बॉडीज़. अगर नेचुरल एक्वेटिक बॉडीज़ में फिश सीड्स कम है तो वहाँ पे हम रीस्टॉक कर सकते हैं फिश सीड्स से. एंड बाय दैट वे द पर्पज़ ऑफ द रीस्टॉकिंग ऑफ द नेचुरल वाटर बॉडीज़ इज़ फॉर कमर्शियल पर्पज़. If we are adding certain fish seeds in the natural water bodies, definitely that fish seeds or the fingerlings will grow up to the adult size, and when that fishes were catched and marketed, definitely the peoples or the fishermen or the who are concerned with that business, they get benefited. So it is a commercialization is there. So the success of a fish farm depends upon careful planning and the management. These words are very useful one. फिश फार्म का सक्सेस जो होता है ये डिपेंड करता है कि केयरफुल प्लानिंग पे और उसके मैनेजमेंट पे. ऑलरेडी एक नेचुरल वाटर बॉडी में फिश सीड है और उसके बाद में भी अगर हम वहाँ पे फिश सीड डाल रहे हैं, या फिर एक फिश एक नेचुरल वाटर बॉडीज़ में वहाँ पे कैट फिशेस या फिर प्रेडेटरी फिशेस है और वहाँ पे हमने कुछ फिंगरलिंग्स वगैरह स्टॉक कर दिए, तो उन फिंगरलिंग्स को या फिर उन स्पॉन्स को ये कैट फिशेस खा लेंगे एज अ फूड बोल के. सो वी मस्ट नो, वी मस्ट हैविंग द अंडरस्टैंडिंग और द इकोलॉजी ऑफ दैट नेचुरल वाटर बॉडीज ऑल्सो. या फिर हमने वहाँ पे फिश सीड स्टॉक कर दिए और हमें ये पता ही नहीं है कि नेचुरल फूड प्रोडक्शन वहाँ पे कितना हो रहा है. तो नेचुरल फिश फूड प्रोडक्शन वहाँ पे अगर उतना नहीं हो रहा है तो देयर इज़ अ नीड ऑफ व्हाट वी आर कॉलिंग एज आर्टिफिशियल फूड to that particular fishish one, and for all that purpose the planning and management is necessary. सिर्फ हमें कुछ बातें theoretically या फिर fundamentals मालूम होने से कुछ नहीं होता. ठीक है, सारी बातें theoretical या फिर fundamental जो चीज़ें हैं वो मालूम होना बहुत ही ज़रूरी होता है, बट उसी के साथ में कुछ टेक्निक्स हमें ज़रूर मालूम होनी चाहिए. कि हमने सोचा है कि फ़िश को फूड देना है तो हमारे पास में कोई टेक्निक नहीं है, तो फिर फंडामेंटल फिशेस को फूड देने चाहिए, उसके वजह से फिशेस की ग्रोथ होगी. ये हमें थेरोटिकल या फिर फंडामेंटल मालूम है, लेकिन फ़िश को फूड कैसा देना चाहिए ये जो है ये दैट इज़ रिलेटेड विद द टेक्निक्स. सो टेक्निक्स आर ऑल्सो व्हाट वी आर कॉलिंग एज यूजफुल फॉर रनिंग द फार्म. Or if we know the techniques, that time only the proper conditions of the fishes which are under the culture they are guaranteed one. अगर हमें टेक्निक मालूम है कि हम सवेरे फूड देना है, फूड देते वक्त हम कोई फ्लोटर लेंगे, फ्लोटर पे बैठ के उस पॉन्ड के अंदर जाएंगे और डिफरेंट प्लेसेस पे हम फूड मटेरियल जो है वो अलग अलग टाइप में हम देंगे. कभी ब्रॉडकास्टिंग मेथड से देंगे, कभी किसी एक पॉट में फूड रख देंगे. सो द मैनेजमेंट एंड द व्हाट वी आर कॉलिंग एज प्लानिंग, दे आर द इसेंशियल एस्पेक्ट्स. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हाट द फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फिश फार्म. फिश फार्म तैयार कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमें किन चीज़ों के बारे में कंसिडर करना, कंसिडरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. दैट थिंग्स इट मस्ट बी कंसिडर्ड वन. अगर इन चीज़ों को हम कंसिडर नहीं करते हैं तो फिश फार्म कंस्ट्रक्शन करना जो गोल होता है वो गोल, दैट गोल इट विल बी नॉट अचीव्ड अप टू दैट मार्क. तो द फर्स्ट थिंग इज़ द वाटर.
वी मस्ट नो दैट इन व्हाट क्वांटिटी द वाटर इज़ अवेलेबल। हम जहाँ पे भी फिश फार्म कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो हमें कितने पॉन्ड्स वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने हैं, और उतने पॉन्ड्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए थ्रू आउट ईयर जो वाटर लगता है वो वाटर उतने क्वांटिटी में अवेलेबल है या नहीं है। मतलब हम जहाँ पे फ़िश पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं उस एरिया में कोई लार्ज साइज़ रिजर्वायर है क्या, कोई रिवर है क्या, कोई वेल है क्या, कोई ऑक्सबो है क्या। तो ये अलग अलग वाटर सोर्सेस हमें मालूम होने चाहिए। सिर्फ वाटर सोर्सेस मालूम हो के कुछ नहीं चलता है, वो जो वाटर हमें अवेलेबल हो रहा है उस वाटर के क्वालिटी के बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए कि रैदर दैट वाटर क्वालिटी इज़ गुड फॉर रियरिंग द फिश। आर्टिफिशियल फ़िश रियरिंग के लिए वाटर क्वालिटी ज़रूरी है नहीं है। और इसी के साथ में सोर्स भी मालूम होना चाहिए कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। अगर ये पानी हमें रिवर से आ रहा है तो उस रिवर से जहाँ से पानी आ रहा है उसके सराउंडिंग में क्या एक्टिविटीज़ चलती है ये भी मालूम होना चाहिए। हमें ये पता चल रहा है कि उस रिवर के सराउंडिंग में बहुत सारे एग्रीकल्चर लैंड्स है और वहाँ पे बहुत सारा पेस्टिसाइड्स और जिसे हम कहेंगे फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं। तो नेचुरल रेन से वो सारे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स वाटर में आ जाएंगे, और ऐसे वाटर को अगर हम फिश कल्चर के लिए अगर यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली उस पेस्टिसाइड के अंदर के जो मेटल्स है वो फिशेस के बॉडी के अंदर जाएंगे और ह्यूमन के अंदर भी वो मेटल्स वगैरह जा सकते हैं, जिसकी वजह से बायोडिग्रेडेशन ऑफ आवर डेलिकेट ऑर्गन्स आर पॉसिबल। तो इन सारी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वाटर का सोर्स क्या है और उसकी एक्टिविटीज़ क्या है, और उसके रेमेडीज़ भी हमें जो है वो मालूम होने चाहिए। सिर्फ वाटर अवेलेबल है इससे भी कुछ नहीं चलता। ठीक है, बहुत अच्छा रिजर्वायर है या नेचुरल रेन वाटर से बहुत सारा पानी जो है हिली एरिया में जमा होता है और हम वहाँ से वाटर जो है अपने पॉन्ड्स के लिए ले सकते हैं, ऐसा भी होगा। लेकिन जहाँ पे हम पॉन्ड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वहाँ के सॉइल की क्या क्वालिटी है या फिर सॉइल का नेचर क्या है ये भी मालूम होना चाहिए कि सॉइल का टेक्सचर कैसा है। अगर सॉइल अगर रॉकी होगा तो तुरंत उसके अंदर पानी फिलअप करते हुए पूरा पानी परकोलेट हो जाएगा, सो दैट विल बी नॉट द थिंग। तो उस सॉइल में रिटेंशन एबिलिटी कितनी है, उस सॉइल की परमेबिलिटी जो है, वाटर पास करने की क्षमता जो है वो कितनी है, उस सॉइल का टेक्सचर कैसा है। पूरी सॉइल अगर सैंडी या फिर ग्रेवल ऐसी अगर होगी तो दैट विल बी नॉट यूज्ड। थोड़ी सी ब्लैक सॉइल वहाँ पे होनी चाहिए, सैंडी ग्रेवल वगैरह इनका टेक्सचर बहुत हो गया 10% तक होना चाहिए। दैट थिंग इट मस्ट बी नोन वन। अनदर थिंग टोपोग्राफी ऑफ द लैंड। हमें जहाँ पे पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करना है उस पर्टिकुलर पॉन्ड की टोपोग्राफी मीन सरफेस फीचर ऑफ दैट पॉन्ड इट मस्ट बी नोन टू अस। अगर सरफेस फीचर में ऑलरेडी वो एरिया एलिवेटेड है या फिर हिली है तो वहाँ पे पॉन्ड कैसे कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। पॉन्ड कंस्ट्रक्शन के लिए ना हमें पूरी फ्लैट ज़मीन चाहिए ना हिली चाहिए, थोड़ा सा स्लोपिंग चाहिए, या फिर हम कहेंगे कि 3 साइड से थोड़ा सा एलिवेटेड पोर्शन है, बीच में थोड़ा सा डाउन पोर्शन है और एक साइड से थोड़ा सा ओपन है, या फिर सॉसर शेप्ड स्ट्रक्चर है। तो ऐसे दैट लैंड इज़ गुड वन। Along with that, the environmental considerations are also necessary. Where we are growing the what we are calling as the fishes one, जहाँ पे हम पॉन्ड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वहाँ का वेजिटेशन डेंसिटी कैसी है, उसका कवर कैसा है ये भी मालूम होना चाहिए। बहुत घना जंगल है और लाइट ही वहाँ तक नहीं पहुँचती है, तो ऐसे जगह में अगर कोई पॉन्ड होगा भी तो वहाँ पे अगर लाइट ही पेनिट्रेट नहीं करती है तो उस वाटर बॉडी में उनके खुद के अलगीज ग्रो होना पॉसिबल नहीं होता है, या फिर बिल्कुल ही प्लांटेशन आजू बाजू में नहीं है दूर दूर तक, तो ऐसे जगह पे वाटर इवापोरेशन का भी प्रॉब्लम वहाँ पे होता है। तो एनवायरमेंटल कंसिड्रेशन भी ज़रूरी होता है। उसके अलावा एसेसिबिलिटी क्या है कि जहाँ पे ये पॉन्ड कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं वहाँ तक पहुँचने के ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है या नहीं है तो लो कॉस्ट में हम वहाँ तक पहुँचने का रास्ता या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बना सकते हैं क्या। फिशेस का हार्वेस्टिंग करने के बाद में उस फिशेस को प्रोसेसेस के लिए या प्रिजर्वेशन के लिए नियर बाय प्लेसेस को हम ले जा सकते हैं क्या नहीं, ये सारी एसेसिबिलिटी को भी कंसिडर करना ज़रूरी होता है। अभी दूसरे कुछ फैक्टर्स भी उसके अंदर इंक्लूड होते हैं
ठीक है, मान लो हमारे पास पानी है, ज़मीन अच्छी है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, लैंड अच्छी है, तो हमने वहाँ पे पॉन्ड भी कंस्ट्रक्ट कर लिया, फिशेज भी ग्रो कर लिए। लेकिन प्रॉक्सिमिटी एंड साइज ऑफ मार्केट, फिश सेल ही नहीं होते हैं आज आसपास के मार्केट में। हमने यहाँ पे पॉन्ड किया और उसका मार्केट यहाँ से कहीं तो 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर होगा, तो हर रोज़ वो फिशेस उस मार्केट तक पहुँचाना जो है वो भी काफ़ी दिक्कत होती है। दैट थिंग इज़ आल्सो कंसिडर्ड। एंड अनदर थिंग इज़ देयर पोचिंग। हमने ऐसे जगह पे पॉन्ड कंस्ट्रक्ट किया है कि जहाँ पे रात में कोई भी आता है और छोटी सी नेट डालकर उसके अंदर के फिशेज जो है उड़ा कर ले जाता है, इलीगल टाइप से फिशेज को हार्वेस्ट करता है, उसे हम पोचिंग कहते हैं। सो पोचिंग वगैरह उनके चांसेस क्या है ये भी हमें देखना चाहिए। सिमिलरली फ़िश फार्म के लिए जो कुछ भी इनपुट्स लगते हैं, अभी इनपुट मतलब उसके लिए एक्सपर्टाइज जिसे हम कहेंगे पर्सन्स लगेंगे जो उसके वाटर पैरामीटर्स को हर रोज़ चेक करेंगे, या उनको उसका प्रोफेशनल जिनको उसका सब्सिडरी चीज़ें मालूम हो, अगर ऑक्सीजन कम हुआ है तो क्या करना चाहिए वगैरह। तो ये सारे इनपुट्स को जो है वो भी देखनी चाहिए। उसी के साथ में एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। किसके बारे में? एक्सपर्टाइज शुड बी देयर अबाउट द कंस्ट्रक्शन एंड लेआउट ऑफ द फिश फार्म एंड पॉन्ड्स। फिश पॉन्ड्स जो फिश फार्म में हम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, तो उसका हमें एक्यूरेट लेआउट भी मालूम होना चाहिए। हम अभी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो हमने एक पहला फ़ोटोग्राफ आपको बताया था, वहाँ पे बराबर एक साइड को स्टॉकिंग पॉन्ड, रियरिंग पॉन्ड, नर्सिंग पॉन्ड वगैरह डिज़ाइन किए थे। तो हमारे पास अवेलेबल जगह में सारी जगह को बराबर यूटिलाइज़ करते हुए कंस्ट्रक्शन एंड लेआउट ऑफ द फिश फार्म और पॉन्ड्स, इसका आइडिया हमें क्लियर मालूम होना चाहिए। उसी के साथ में हमारे को उस पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ पॉन्ड्स तैयार करने हैं, एंड द सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ फिश कल्चर, वहाँ पे हम कौन से टाइप के फ़िश स्पेसीज़ का कल्चर करने वाले हैं, ये भी बहुत क्लियरली मालूम होना चाहिए। कौन से फ़िश कितने दिन में ग्रो होती है और उस पर्टिकुलर एरिया में उस पॉन्ड में कितने दिन तक पानी रहने वाला है और उतने दिनों में कितने फिशेज ग्रो हो गए। दैट ऑल दिस थिंग्स इट मस्ट बी नोन टू the person who is going to construct a fish farm on. Then selection of suitable fish for culture. Selection of suitable fish for culture कि यहाँ पे फिश स्पेसीज़ जैसे कि अगर एक पॉन्ड है तो जनरली ओवरऑल इंडिया में रोहू, कटला, मृगल, ये 3 फिश स्पेसीज़ एटलीस्ट एट अ टाइम रियर किए जाते हैं, क्योंकि कटला जो है वो सरफेस फीडर है। उस पॉन्ड वाटर के सरफेस रीजन में ही कटला मोस्ट ऑफ टाइम रहता है और वहीं फीडिंग करता है। रोहू जो है वो मिड ड्वेलर है, वाटर के मिड प्लेस में ही वो लोकोमेट करेगा, वहीं से फूड लेगा। और मृगल जो है वो बॉटम फीडर है। मतलब एक ही पॉन्ड में 3 टाइप के फिश स्पेसीज़ अपने अपने एरिया में अपने अपने हैबिटेट में ग्रो होते हैं। उसी के अलावा तो हमें सिप्रिनस, कार्पियो, जो फिश स्पेसीज सुटेबल फिश स्पेसीज कौन से ग्रो करनी चाहिए ये भी हमें मालूम होना चाहिए। कंडीशनिंग प्रोसीजर्स ऑफ पॉन्ड को कंडीशन में रखना वो भी मालूम होना चाहिए कि अगर ऑक्सीजन कम हुआ है तो पॉन्ड को आर्टिफिशियली एरिएट कैसा किया जाता है। पीएच अगर कम हुआ है तो पीएच न्यूट्रल या अल्कलाइन कैसा बनाया जाता है। दैट ऑल दिस थिंग्स इट मस्ट बी नोन टू वन। अपार्ट फ्रॉम दैट जहाँ पे हम पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं तो वहाँ पे उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि स्टॉकिंग डेंसिटी कितनी रखनी चाहिए। बहुत बार तो इट इज़ फाउंड दैट ऑलमोस्ट द पीपल्स दे आर नॉट अवेयर अबाउट द स्टॉकिंग डेंसिटी। एक छोटा सा पॉन्ड है 1 एकड़ साइज का, इट इज़ लेस दैन 1 हेक्टर, हाफ हेक्टर, and it was found that they have stocked 1 lakh fish spawns in that pond. अगर 1 एकड़ पॉन्ड में 1 लाख अगर फिश सीड स्टॉक करोगे तो हर फिश स्पेसीज जो है 1 kg तक ग्रो होगी ही नहीं, क्योंकि उनको फूड और स्पेस दोनों भी कम होते जा रहा है तो उनकी ग्रोथ होगी ही नहीं, और बहुत सारे स्पीसीज फिशेस तो वहाँ पे लाइव रहेंगी नहीं। तो 1 हेक्टर पॉन्ड में, 2.5 एकड़ के पॉन्ड में हम मैक्सिमम 4000 से 10,000 फिंगरलिंग स्टॉक कर सकते हैं
4,000 to 10,000 fingerlings can be stocked depending upon our personal what we are calling as preparation and management of that pond. उस पॉन्ड का हम मैनेजमेंट कैसे करने वाले हैं. अगर उस पॉन्ड में कोई फैक्टर्स बहुत ज़्यादा लेवल पे अगर चेंज हो रहे हैं तो ऐसे टाइम में उसका मैक्सिमम वाटर ड्रेन आउट करके वहाँ पे फ्रेश वाटर विद इन टाइम अगर दे सकते हैं तो ऐसे कंडीशन में और कंट्रोलेबल अगर पॉन्ड है तो ऐसे टाइम में वहाँ पे हम 8,000 9,000 10,000 फिंगरलिंग स्टॉक कर सकते हैं. लेकिन किसी पॉन्ड का 2.5 एकड़ के पॉन्ड का 2 एकड़ के पॉन्ड को अगर हम एक बार उसके अंदर वाटर फीड हो गया तो पूरा वाटर उसका हम निकाल नहीं सकते, थोड़ा बहुत वाटर रिप्लेस कर सकते हैं. इन सच कंडीशन वी हैव टू स्टॉक अबाउट 3-4,000 फिंगरलिंग्स इन दैट पॉन्ड. सो स्टॉकिंग डेंसिटीज़ के बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए. कितने फिश सीड ऐड करने के बाद में कितना वहाँ पे फिश का ग्रोथ होगा, मतलब हमारे पास में कितने मंथ तक उस पॉन्ड के अंदर फिश रहेगा, उसके हिसाब से आने वाले टाइम में वो फिश, ऐसा नहीं है कि हर फिश एक साल में 1 kg का ही होता है. कोई फिश स्पेसीज होते हैं और वो पर्टिकुलर जोन में ग्रो होने वाले होते हैं. तो कोई फिश स्पेसीज एक साल में 300 ग्राम ग्रो होती है, कोई 500 ग्राम होती है, कोई 800 ग्राम होती है. तो हमने जितने फिश सीड्स वहाँ पे ग्रो किए हैं उस हिसाब से हमें मालूम होना चाहिए कि कितना वहाँ पे प्रोडक्शन होगा. एंड एट द सेम टाइम मेथड्स फॉर सिस्टमेटिक कंट्रोल एंड देयर डेवलपमेंट. तो सिस्टमेटिकली कैसा कंट्रोल करना चाहिए, कैसे डेवलप करना चाहिए, दैट थिंग्स मस्ट बी नोन. उसके बारे में थोड़ी सी तो एक्सपर्टाइज होनी चाहिए. अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल फूड वहाँ पे पॉन्ड में कितना है, उसका कितना बेटर यूटिलाइजेशन जो फिश सीड हमने डाला है वो करेंगे. अभी कौन से ड्यूरेशन के बाद में हमें कितना फूड उस पॉन्ड के अंदर हमें देना चाहिए, कितने फर्टिलाइज़र्स हमें डालने चाहिए. फर्टिलाइज़र्स अगर हम पॉन्ड के अंदर डालेंगे तो अच्छी तरह से वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ होगी एंड दैट इज़ यूज्ड एज अ फूड. सो मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ फिशेस ये भी जो है ये भी मालूम होना चाहिए. Then the important thing is there, the failure or success of the fish farm business or enterprise, it depends upon the selection of a good site. फिश फार्म जो बिज़नेस है या एंटरप्राइज जो है ये इसका फेल्यूर या सक्सेस ये डिपेंड करता है कि आपने साइट कैसी सेलेक्ट की है. एंड द साइट सेलेक्शन स्ट्रांगली अफेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. हमने जो साइट सेलेक्ट की है वहीं पे हम अगर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो इसका इफ़ेक्ट जो है हमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे आएगा. इसलिए हम साइट सेलेक्ट करते हुए कुछ बातों का अगर हम ध्यान देखते हैं तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन रिड्यूस हो सकता है. एंड फॉर दैट दिस आर्टिकल इज़ देयर फॉर योर सिलेबस, that which site it will be helpful for the construction of the fish farm, or which site will helpful for the cost of reducing the cost of construction. Then amount of fish that can be produced and helps in pond management. अगर हमने अच्छी सी साइट सेलेक्ट की है, अगर थोड़ा सा हमने लैंड ऐसा सेलेक्ट किया है कि स्लोपिंग लैंड है, तो स्लोपिंग लैंड अगर हमने सेलेक्ट की है तो उसका यूज़ क्या होगा. तो एक्सकैवेशन, अगर फ्लैट लैंड पे हम पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं तो सारी की सारी ज़मीन हमें एक्सकैवेट करनी पड़ेंगी. अगर 3 साइड से लैंड ऑलरेडी एलिवेटेड है और बीच में थोड़ा सा डिप्रेशन है और एक साइड से ओपन है, तो जिस साइड से ओपन है हम वहाँ पे अर्थ या फिर सॉइल वहाँ ऐड करके हम उस वहाँ पे एक एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और बाकी जगह जो है उसका हम एक्सकैवेशन कर सकते हैं, एक्सकैवेशन डिगिंग. तो उसको एक्सकैवेट करके मतलब कम से कम जगह हमें एक्सकैवेट करनी पड़ेगी और हम लार्ज साइज पॉन्ड वहाँ पे बना सकते हैं. तो दैट थिंग्स आर हेल्पफुल वन. इससे कॉस्ट भी जो है वो कम हो जाएगा. सो व्हाट द थिंग इज़ देयर दैट द थिंग बिफोर टेकिंग डिसीजन प्रायर द साइट सेलेक्शन. साइट सेलेक्शन करने से पहले कुछ बातें जो है उसके बारे में फिर एक बार आपको सोचना है कि डायरेक्ट किसी को साइट सिलेक्शन के बारे में बताने से पहले या खुद को अगर बोला गया कि एक साइट सेलेक्ट करो फिश फार्म कंस्ट्रक्शन के लिए,
तो उससे पहले हमें कुछ बातें मालूम होनी चाहिए। एंड व्हाट द थिंग्स आर देयर, डू आई हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ द टाइप ऑफ फिश फार्म आई वांट टू कंस्ट्रक्ट। क्या मुझे मालूम है पूरी तरह से? अगर मालूम नहीं है तो उसके बारे में और अच्छी तरह से स्टडी कर लो, समझ लो, जांच लो, और आपको जब आपका क्लियर कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि यस आई हैव द क्लियर आइडिया अबाउट द टाइप ऑफ फिश फार्म, मुझे कौन से टाइप के फिशेस रियर करने हैं, कौन से साइज़ का पॉन्ड होना चाहिए, कितना पानी लगता है, वो पानी वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, ये सारे क्लियर आइडिया है या नहीं है, ये मालूम होना चाहिए। व्हाट प्रोडक्शन लेवल इज़ माय टारगेट, मुझे कितने फ़िश प्रोडक्शन करने हैं, कितने किलोग्राम, कितने टन, कितने क्विंटल फ़िश का प्रोडक्शन करना है। तो इतने किलोग्राम अगर मुझे फ़िश का प्रोडक्शन करना चाहिए तो उसके लिए लैंड कितनी लगेगी, ये भी प्रोपोर्शन हमें मालूम होना चाहिए, और उसके लिए वहाँ पे उतना वाटर अवेलेबल है क्या, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। व्हाट इज़ द सिस्टम ऑफ कल्चर टू बी अडॉप्टेड, मुझे अगर इतना प्रोडक्शन फ़िश का करना है, मुझे 10 क्विंटल या फिर 50 क्विंटल या 100 क्विंटल फ़िश का अगर प्रोडक्शन करना है और हर फ़िश मैं 200 रुपीज़ केजी से बेचूँगा, ये मेरा टारगेट है, या फिर 100 रुपये केजी से बेचूँगा, ये मेरा अगर टारगेट है, तो उसके लिए टोटल लैंड कितनी लगती है। द आइडिया इट मस्ट बी वेरी मच क्लियर वन। तो मुझे अगर समझो ज़्यादा प्रोडक्शन कम जगह में चाहिए तो मुझे कौन सी कल्चर मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कल्चर मेथड में दो होते हैं, एक एक्सटेंसिव कल्चर, एक इंटेंसिव कल्चर। एक्सटेंसिव कल्चर में मैनेजमेंट बहुत कम होता है। इंटेंसिव कल्चर में द केयर इज़ टेकन लाइक द इंटेंसिव केयर, जैसे कि हॉस्पिटल में आईसीयू होते हैं और पेशेंट की केयर ली जाती है हर सेकंड पर, उसी तरह से इन फिश फार्म्स का केयर लिया जाता है, और ऐसे इंटेंसिव केयर से प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता है। बट फॉर दैट मनी एज वेल एज द मैन पावर इज रिक्वायर्ड वन। इट इज़ नेसेसरी टू प्रोड्यूस द फिंगरलिंग फॉर द फार्म, क्या मुझे फिंगरलिंग्स मेरे फार्म के लिए प्रोड्यूस करना ज़रूरी है? ये एक सिंपल सा सवाल है कि फिंगरलिंग तो सभी को लगता है, लेकिन बहुत सारे जगह पे पॉन्ड्स अवेलेबल होते हैं लेकिन फिंगरलिंग्स अवेलेबल नहीं होते स्टॉकिंग करने के लिए। तो अगर मुझे फिंगरलिंग्स नेक्स्ट ईयर जून में मेरे पॉन्ड में पूरा पानी रहेगा और फिंगरलिंग वहाँ पे अगर नहीं रहेंगे तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे पहले साल में जो फ्राई से फिंगरलिंग हम जब डेवलप कर रहे हैं तो उन फिंगरलिंग्स को उसी पर्टिकुलर स्टॉकिंग पॉन्ड में हम साल भर रखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा फिंगरलिंग साल भर रख कर उसे फीड जो है ये कम देकर उन्हें वहाँ पे मेंटेन किया जाता है। तो उसे हम कहते हैं स्टंटेड ईयरलिंग, मतलब दिखने के लिए वो फिंगरलिंग के जैसे ही होते हैं लेकिन फीड कम देने की वजह से वो स्टंटेड ईयरलिंग्स हो गए। अभी ऐसे फिशेस को अगर हम नेक्स्ट ईयर लार्ज वाटर बॉडीज़ में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनको आर्टिफिशियल फूड अगर दिया जाता है, दैट टाइम दे शोज द ट्रिमेंडस ग्रोथ वन। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स आर देयर, इट मस्ट बी नोन टू ईच एंड एवरी वन। एट वॉट स्टेज ऑफ फिश शुड यू स्टार्ट सेलिंग, कि मुझे फ़िश कब सेल करना चाहिए? क्या एक ही दिन पूरे हार्वेस्ट करके मैं सेल करूँगा तो मुझे बेनिफिट रहेगा, या फिर मैं बीच बीच में अभी फ़िश 500 ग्राम का हुआ है, 600 ग्राम का है, इस टाइप में सेल करूँगा? दैट ऑल दिस थिंग्स इट मस्ट बी व्हाट वी आर कॉलिंग एज नोन टू द पर्सन हु इज़ गोइंग टू इंट्रोड्यूस इन द फिश फार्मिंग वन. So answers of this question will assist greatly during the site selection, what we are calling as exercise. So you see these are few sites are there. So here what the thing is there, if the land is slopy, अगर land ऐसे slopy है तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कंस्ट्रक्ट करते हुए यहाँ पे आप ग्रैन्युलर मटेरियल डालते हैं तो पानी यहाँ से डायरेक्टली जो है इस ग्रैन्युलर फील्ड से परकोलेट होके यहाँ पे आएगा, और स्लोपी एरिया होने की वजह से यह नीचे पार्ट्स में एक्सकैवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और यू सी इन दिस फोटोग्राफ द हाउ द पॉन्ड्स आर देयर, ये इंटेंसिव कल्चर के पॉन्ड्स है जिसके अंदर बहुत अच्छा सा केयर लेके वाटर रोटेशन वगैरह सारी बातें इसके अंदर मेंटेन की गई है इस पॉन्ड्स में। या और ये ऊपर का जो एग्जांपल है ये एक्सटेंसिव टाइप ऑफ फार्म है, सिर्फ प्लेन रीजन पे पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करके उसके अंदर फिश सीड जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सो दिस इज़ द अनदर वन, अ स्मॉल बैकयार्ड फार्म इज़ देयर। बैकयार्ड फार्म में जहाँ वाटर परकोलेशन का प्रॉब्लम होता है वहाँ पे आप जिसे हम कहेंगे कि प्लास्टिक शीट्स भी अवेलेबल है। प्लास्टिक शीट्स पे हम फिर बाद में सॉइल वगैरह
उसके ऊपर ऐड करके उसके अंदर वाटर जो है वो फिलअप करते हैं वाटर पर्कुलेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. सो दीज आर ऑल्सो द पॉन्ड्स आर देयर. दिस टाइप ऑफ द पॉन्ड्स आर कॉल्ड एज द रोजरी पॉन्ड्स. इसे हम रोजरी पॉन्ड्स कहते हैं. रोजरी पॉन्ड्स में क्या होता है कि जहाँ भी इसके बैक साइड में कोई रिजर्वायर होगा वहाँ से पानी आ रहा है, और ये जो पानी आ रहा है तो ये पानी आके इस पॉन्ड को पूरा फिलअप कर देगा लास्ट बैक साइड में जो पॉन्ड है. फिर वो पॉन्ड फिलअप होने के बाद में उससे जो आउटलेट निकल रहा है वो आउटलेट से बीच वाला पॉन्ड जो है वो फिल होगा. फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉन्ड जो है वो फिल होगा. अभी इसका कनेक्शन और इधर के साइड पे भी दिया जा सकता है. सो दीज आर द रोजरी पॉन्ड्स. एक रोजरी पॉन्ड्स का टाइप है. सो यू सी दीज आर द पैरेलल पॉन्ड्स. ये पैरेलल पॉन्ड्स है. पैरेलल पॉन्ड्स में खासियत होती है कि रोजरी पॉन्ड में एक पॉन्ड फिलअप होता है, फिर उसके आउटलेट से दूसरा पॉन्ड फिलअप होता है, फिर वो पॉन्ड फिलअप होने के बाद में फिर उसके आउटलेट से तीसरा पॉन्ड फिलअप होता है. तो वहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज ग्रेविटी का भी लिया जाता है. अभी ये जो पॉन्ड है ये साइंटिफिकली मैनेज्ड पॉन्ड्स है, लेकिन ये पैरेलल पॉन्ड्स है. पैरेलल पॉन्ड्स में हर एक पॉन्ड का अपना खुद का एक इनलेट और अपना आउटलेट होता है. मतलब ऐसा नहीं कि ये पॉन्ड फिल होगा बाद में दूसरा पॉन्ड फिल होगा. यहाँ पे हर पॉन्ड के लिए एक सेपरेट कनेक्शन दिया गया है, वाटर कनेक्शन, जहाँ से पानी उस पॉन्ड के अंदर आएगा और जो वाटर है वो बाहर निकाला भी जाएगा. सो यू सी दीज आर द डिफरेंट व्हाट वी आर कॉलिंग एज पॉन्ड्स आर देयर. ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी है हियर. देयर आर द दिस इज द अगेन द एग्जांपल ऑफ द रोजरी पॉन्ड. यहाँ पे जो वाटर जो है वो वाटर ऐसा अलोंग द ग्रेविटी इधर से पानी आ रहा है, और जैसे ही यहाँ से पानी जो है ये एक पॉन्ड फिल होके बाद में दूसरे पॉन्ड को दिया जा रहा है. सो दीज आर द पॉन्ड्स अलोंग विद द स्लोप. जैसे कि स्लोप्स के हिसाब से रखे गए हैं. प्रायर डिस्कशन विद द सिलेक्शन ऑफ द साइट वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर in the next session 1.